Hello students, a very good morning to all of you. How are you students? I hope all of you will be fine. So students, in this class our last chapter is natural resources. Natural resources. So students, आपकी इस क्लास में जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज. And the most of the concept of this chapter we have already studied about in our previous classes. Natural resources के almost concept हम अपनी previous classes में पढ़ चुके हैं. What do you mean by natural resources and pollution, pollutants, air pollution, water pollution, soil pollution, sound pollution, etc. But in this class we will going to read about a new concept and that is biogeochemical cycles. इस क्लास में हम इस चैप्टर में एक जो नया कॉन्सेप्ट रीड करेंगे वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें हम वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में रीड करेंगे. But before starting them, now let's start our chapter by the introduction of this chapter is natural resources. What do you mean by natural resources? So, natural resources means useful things found in nature are called natural resources. Natural resources. हमारे नेचर में जो भी इन अवर सराउंडिंग जो भी यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन अवर सराउंडिंग आर एयर, वाटर एंड सॉइल. That are the natural resources in our surrounding air, water and soil. Air, that is called atmosphere. Air, which is also known as atmosphere. Most of the part of our earth crust and most of the part of our earth crust is covered by water. Almost 75% area of the earth crust is covered by the water. एंड वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर भी प्रेजेंट होता है एंड सरफेस वाटर भी प्रेजेंट होता है. तो जो अर्थ क्रस्ट का 75% एरिया है वो वाटर ने कवर किया है. एंड दैट इज थर्ड इज सॉइल. सो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट that is called lithosphere. The solid part of the earth crust is lithosphere, and the liquid part you can say that water part. Underground water, earth surface के अंदर जो water present है underground water which is called water part of the earth is hydrosphere. That is hydrosphere. And suppose that this is your earth and the earth crust is called lithosphere. The solid part of the earth is lithosphere and the liquid part of the earth के अंदर जो watery part है उस एरिया को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, जहां अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट होती है. ये एरिया हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर. एंड एयर इन सराउंडिंग द अर्थ, air in surrounded the earth, that is called atmosphere. अर्थ के चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट है which is formed atmosphere, ये हो गया आपका atmosphere. And the living conditions of the earth because of these factors. The earth पे life possible होने के लिए जो 3 factors responsible हैं, these are 3 factors, living conditions that
बिकॉज ऑफ दैट लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट विच आवर अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर, एंड बिकॉज ऑफ विच आवर अर्थ इज कॉल्ड biosphere. Okay students, so the solid part of the earth crust is lithosphere and watery part, you can say that liquid part or watery part, earth के अंदर जो water present है वो area that is called hydrosphere, and air and surrounded the earth that is called atmosphere. अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एक एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ है that is the atmosphere layer of the earth, that is formed atmosphere, and lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Because of these factors, the life is possible on the earth, and because of that factor our earth is called biosphere. Our earth is biosphere. Three factors, because of these three factors life is possible on the earth, and because of which our earth is called biosphere. And students, हम ये कहें कि air, what is the function, what is the role of air in our surrounded earth के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, what is the role of atmosphere exactly? एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? गैसेस, CO2, O2 and many other gases, basic gases. The function of air, एयर का फंक्शन सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करना ही नहीं, बेसिक गैसेस को एक्सचेंज करना मीन्स जिन्हें O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाना, मीन्स एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो बेसिक गैसेस हैं उनको ही एक्सचेंज करना या प्रोवाइड करवाना नहीं है. जबकि एयर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है, थर्मो रेगुलेटिंग का काम भी एटमॉस्फेयर ही करती है. थर्मो रेगुलेटिंग मीन्स डे और नाइट में जो टेम्परेचर में वेरिएशंस हैं, बिकॉज ऑफ आवर एटमॉस्फेयर द वेरिएशन इन टेम्परेचर इज वेरी लो. एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो बहुत ही कम होता है. ऑलमोस्ट थर्मो रेगुलेटिंग मीन्स टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं. एटमॉस्फेयर की वजह जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर एंड सराउंडेड द अर्थ विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट है जो एटमॉस्फेयर फॉर्म करती है, इस एटमॉस्फेयर का रोल सिर्फ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस नहीं है, इसका रोल प्ले क्या करते हैं ये थर्मो रेगुलेटिंग का वर्क भी करते हैं. थर्मो रेगुलेटिंग मीन्स ये टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं, मीन्स ऑल ओवर जो भी कंडीशंस होती है टेम्परेचर को लिविंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग बैलेंस रखते हैं. सपोज दैट अगर हम मून की बात करें जहां लाइफ पॉसिबल नहीं है, अगर हम कहीं से वहां ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दें, मीन्स हमने वहां ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दी, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमने ऑक्सीजन वहां प्रोवाइड करवा दी, तो क्या हम ये कहेंगे कि वहां एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है? नहीं, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन तो हमने वहां प्रोवाइड करवा दी, बट वहां डे टू नाइट में अगर हम टेम्परेचर को देखते हैं तो नाइट में टेम्परेचर -200, फिर डे में टेम्परेचर नियर अबाउट -110, मीन्स टेम्परेचर के बीच में जो वेरिएशन है ये बहुत ही ज्यादा होता है. और इस टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से वहां लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती है. सो एयर का रोल सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करना, गैसेस प्रोवाइड करवाना ही नहीं, बल्कि थर्मो रेगुलेटिंग मीन्स जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करना भी होता है. सेकेंड है वाटर. वाटर, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. हमारी अर्थ क्रस्ट का मोस्ट ऑफ द 75% एरिया जो है वो वाटर से कवर है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है उस पार्ट को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. एंड सॉइल, वाटर का रोल, प्लांट, बिना वाटर के प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. सॉइल, प्लांटेशन के लिए सॉइल अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऑल ओवर प्लांट्स किस पे डिपेंड है? सॉइल पे डिपेंड है. एंड जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है. सो इस तरह से एक साइकिल फॉर्म होता है. सो सॉइल, वाटर, एयर, दे आर
नेचुरल रिसोर्सेस। ये क्या हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हो गए। अब हम वन बाय वन रीड करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एयर पॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पॉल्यूशन, and what do you mean by soil pollution? What are the factors responsible for air pollution? What are the factors responsible for water pollution and soil pollution? इन pollution के लिए responsible factors क्या हैं? What is pollutants? Pollutants क्या होते हैं? ये सारे ही concept हम अपनी next class में read करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज हमने इस क्लास में रीड किया। नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर सराउंडिंग, एयर, वाटर एंड सॉइल। सो एयर दैट इज एटमॉस्फेयर। एयर क्या है? एटमॉस्फेयर है। जो अर्थ क्रस्ट है, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सॉलिड एरिया है, सॉलिड पार्ट है अर्थ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। And the liquid part, water part, that is hydrosphere. Underwater, that is hydrosphere. And air in surrounded the earth, that is called atmosphere. अर्थ के चारों तरफ जो एयर की एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एंड द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का रोल क्या है? एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करने के अलावा टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम भी करती है, जिससे कि लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। हमारी जो प्लेनेट है अर्थ, उस पर लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, एंड बिकॉज ऑफ विच आवर अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। That is biosphere, the cycle of the earth, the cycle surrounded the earth within the atmosphere, lithosphere, and hydrosphere, that is called biosphere. So that is our living conditions for the life possible on the earth. earth के ऊपर life possible होने के लिए जो living conditions हैं, that are the living conditions, because of that life is possible on the earth. life earth पर possible है। सो उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रीड करने वाले हैं वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बाद जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रीड करेंगे वो है हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। सो रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम पॉल्यूशन टॉपिक रीड करेंगे।